हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सीरीज़। हम लास्ट कंप्लीट कर चुके थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर तक। टुडे वी विल टेक पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल फॉर दिस पॉलिनेशन, और उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस, कुछ अडेप्टेशंस भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज पॉलिनेशन। एज वी नो, सी दिस इज अ मेल reproductive part, the unit of the male reproductive part, that one is called as a stamen and this one is called as an anther. Inside this anther, or we can say anther lobe, what is producing? Pollen grains are producing. pollen grains बन रहे हैं, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं? दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू बने हैं। दैट प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, microsporogenesis process. So what will happen? See, this is the stigma. So what will happen? The transfer of the pollen grain from the anther to the stigma, that is called as pollination. Means transfer होगा pollen grains का। pollen grain कहाँ से कहाँ transfer होंगे? anther से station. Two types of pollination are there basically. So first one is called as a self pollination and the second method is a cross pollination. When we will say it is a cross pollination or it is a self pollination? Suppose in a simple words, this one is a flower, okay, and this one is another flower, and see this condition. So what will happen? We know flowers may be bisexual, it may be unisexual, and I am saying this one is a bisexual flower. Bisexual means ये ऐसा flower है जिसके पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। So suppose if the pollen grains will transfer from the anther to stigma but within the same flower, or we can say if it will transfer within the same plant, means suppose इसका मेल पार्ट है, इस वाले का फीमेल पार्ट है, अगर within the same plant, दो कंडीशंस हैं इसमें, within the same plant, तो if the pollination is there within the same plant or within the same flower, then it will be called as a self pollination. When the another case is that कि अगर pollination हो रहा है and the transfer will be from the one part to the another part but in a different plants, अलग अलग plants के अंदर हो रहा है। सी इसके pollen grains हैं, दूसरे के part तक जा रहे हैं, फीमेल के पार्ट तक जा रहे हैं। सो दिस वन इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, दिस वन इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. Listen, if the pollination will held inside the same flower is there, then I'll use a term, or we should use a term, that is autogamy. This one is called as autogamy. Autogamy means self, ये भी सेल्फ है, ये कंडीशन विद इन द सेम फ्लावर होगा तो भी वो सेल्फ है, विद इन द सेम प्लांट होगा तो भी वो सेल्फ है, बट अगर विद इन द सेम फ्लावर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन एक स्पेसिफिक नाम ले लेता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. और वहीं पर अगर विद इन द सेम प्लांट वाली कंडीशन की अगर हम बात कर देते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ जीटेनोगैमी. But what will happen कि certain conditions are there that are required for the self pollination as well as for the cross pollination. So firstly we should understand what are the different conditions for the self pollination process. So now we will discuss the conditions, और वी कैन से कंडीशंस कह लीजिए या आप एडेप्टेशंस कह लीजिए, जिनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है दैट विल फैसिलिटेट द सेल्फ पॉलिनेशन. सो फर्स्टली दैट शुड बी होमोगैमी. होमोगैमी का मतलब है कि जो अपना प्लांट है उस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पर मैच्योर होना चाहिए. सपोज अगर ऐसा है कि मेल पार्ट स्टेमेंस पहले मैच्योर हो चुके हैं और अगर हमारा जो पिस्टल पार्ट है वो अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी. सो व्हाट विल बी द एडेप्टेशन? फर्स्ट इट शुड बी होमोगैमी, मीन्स बोथ द पार्ट्स will mature at same time. एक ही टाइम पर क्या होना चाहिए? उनको मैच्योर होना चाहिए. द सेकेंड एडेप्टेशन इज क्लिस्टोगैमी. Basically two type of flowers are there. If you discuss the different type of flowers, then two type of flowers are there. कुछ ऐसे flowers होते हैं जो हमेशा क्लोज रहते हैं. सी वी नो बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स दैट रिमेन्स क्लोज, जो हमेशा क्लोज रहते हैं, ऑलवेज क्लोज होते रहते हैं, ऑलवेज क्लोज, जो हमेशा क्लोज रहते हैं. अब सीधी बात है यार, कोई भी एक ऐसा फ्लावर है जो कभी ओपन ही नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पर क्या होना चाहिए? क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ही नहीं है, तो वहाँ पर कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा. सर्टेन एग्जांपल्स आर देयर लाइक ऑक्जेलिस, लाइक पीनट जिसे आप बोलते हो, अरेकिस हाइपोजिया, और यू कैन से मूंगफली. ठीक है, उसके साथ साथ एक सेल्विया है उसके अंदर भी, और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं. एक और है जंकस,
ठीक है। सो सर्टेन फ्लावर्स आर दोज दैट आर क्लिस्टोगैमस इन नेचर, मीन्स वो हमेशा क्लोज रहते हैं, तो उस केस में उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। द एनदर इज दैट, सपोज क्या हुआ कि जो मेल पार्ट है सी, दिस इज अ स्टिग्मा। अब ऑटोमेटिक क्या हुआ कि ये जो मेरा मेल पार्ट है, ये जो स्टेमन है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बेंड हो गया। किस पर बेंड हो गया, बेंड हो गया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि जो बेंडिंग हो रही है, लेकिन वो बेंडिंग किसकी हो रही है, जो मेल पार्ट है वो ऑटोमेटिकली बेंड हो गया स्टिग्मा के ऊपर, तो वो भी फैसिलिटेट करेगा किस चीज़ को, क्रॉस पॉलिनेशन को। या फिर क्या हो कि अपना स्टेमन अपनी जगह पर है और सपोज जो स्टिग्मा है वो इसके ऊपर बेंड हो जाती है। तो दो कंडीशंस हैं, सपोज स्टिग्मा बेंड हो जाए या फिर क्या एंथर बेंड हो जाए। तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, या इन दोनों ही अडेप्टेशंस में हमें ऐसे देखने को मिलता है कि बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। सो this is all about the self pollination. Now we will take the different type of cross pollination and what are the adaptations basically for the cross pollination. So firstly we'll discuss about the adaptations. अगर cross pollination की अपन बात कर रहे हैं तो cross pollination के लिए adaptations क्या होनी चाहिए और we can say conditions क्या होनी चाहिए. Okay, so what are adaptations? Firstly, homogamy नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, unisexuality. We know what is unisexuality. मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, इफ बोथ द फ्लावर्स आर सेपरेट, अलग अलग हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर कौन सी कंडीशन हो सकती है, वहाँ पर फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं हैं। उसके साथ साथ ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाइक्लाइनी, इसको डिक्लाइनी भी कंडीशन कहा जाता है, जिसमें नॉर्मली या तो फ्लावर्स जो होते हैं दैट इज स्टेमिनेट फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली द स्टेमिन, एंड दिस वन इज अ पिस्टिलेट फ्लावर. पिस्टिलेट फ्लावर्स आर दोज फ्लावर दैट कंटेन्स ओनली द फीमेल पार्ट. तो जिनके पास मेल या फीमेल पार्ट में से एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है उनमें नॉर्मली चांसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के. द सेकेंड कंडीशन इज दैट डाइकोगेमी कंडीशन. डाइकोगेमी एज हियर आई हैव डिस्कस्ड दैट द होमोगेमी मीन्स दोनों एक टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, बट डाइकोगेमी का मतलब है कि जो दोनों जो है मीन्स जो ओवरी है और जो एंथर है वो क्या है, मैच्योर जो हो रहे हैं वो दैट इज डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से मैच्योर हो रहे हैं, डिफरेंट टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं. देन आई विल से दैट कि यहाँ पर क्या होगा भैया कि डाइकोगेमी कंडीशन होगी. इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है protandry condition and the second one is protogynous condition. As I'll talk about the protandry condition, और जिसे अपन क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है जो अपना मेल पार्ट है ये मैच्योर कर लेता है पहले. फर्स्टली कौन मैच्योर हो जाता है, प्रोटेंड्रस फ्लावर जो होते हैं उनमें मेल पार्ट मैच्योर हो जाता है. प्रोटोगाइनस, एज वी नो गाइनी टर्म इज रिलेटेड टू द फीमेल, सो इफ द फीमेल जो पार्ट है दैट विल मैच्योर फर्स्ट, फीमेल पार्ट मीन्स कार्पल पार्ट विल मैच्योर फर्स्ट, देन आई से दैट इट इज अ प्रोटोगाइनस फ्लावर. सर्टेन एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, like if I say that the cotton here, cotton, sunflower, चाइना रोज़ जिसे आप जानते हो हिबिस्कस के नाम से या फिर शू फ्लावर के नाम से या फिर गुड़हल के नाम से, ठीक है, लेडी फिंगर, मैरी गोल्ड, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर. और अगर यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें आपने सुना होगा शायद जिसे अपन बोलते हैं मिराबिलिस जलापा, ओके, एंड द हैज नेचर होते हैं. सो सर्टेन प्लांट्स आर दोज दैट आर प्रोटोएंट्री इन कंडीशन, सर्टेन आर दोज दैट आर प्रोटोगाइनस इन कंडीशन. सो उन केस में क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एट द प्लेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. अदर आर ऑल्सो कंडीशंस मे बी देयर लाइक द सेल्फ कंपेटिबिलिटी. एक टर्म होता है सेल्फ कंपेटेबल, मतलब ये जो है वो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं, और एक होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी. इनकम्पेटेबल का मतलब है सपोज कि अगर ये जो पार्ट है मतलब स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि जो मेल पार्ट है या जो पॉलन ग्रेन है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. या फिर एक और है सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब अगर वो खुद ही की स्टिग्मा के ऊपर आके सेट हो जाता है तो वहाँ पर उसमें ग्रोथ नहीं होती, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता. लेकिन जहाँ अगर वो किसी और स्टिग्मा पर चला जाता है सेम प्लांट में, मतलब सेम स्पीशीज़ में, तो वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन कर लेता है. सो दिस इज़ अबाउट द सेल्फ स्टेरिलिटी. उसके साथ साथ और भी कई सारी कंडीशंस हैं, लाइक एक और कंडीशंस हैं हर्कोगेमी. हर्कोगेमी का मतलब होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशंस हो जाती हैं या जो फ्लावर है उसके अंदर कुछ फिजिकल बैरियर्स बन जाते हैं बिटवीन द पोलन्स एंड द स्टिग्मा. जो स्टिग्मा और पोलन जो हैं, जैसे मैं ये बोलूँ कि
पोलन और जो हमारा कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा जो पार्ट है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाते हैं, कुछ बैरियर बन जाते हैं, जिन बैरियर्स की वजह से बेसिकली क्या होता है, मतलब कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। लाइक कि जैसे मैं ये बोलूँ कि भैया ये मेरे पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, तो ये जो मेरे पोलन ग्रेन्स हैं वो किस में क्लोज हो गए, वो एक अलग पैक में क्लोज हो गए, जिसे पॉलिनियम कह रहे हैं, एक अलग सेक लाइक स्ट्रक्चर में क्लोज हो गए, पॉलिनियम लाइक स्ट्रक्चर में क्लोज हो गए, जिसकी वजह से ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। इसमें जब इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे तो उनके थ्रू फिर क्या होगा, पॉलिनेशन हो पाएगा। ये देखने को मिलता है कैलाट्रोपस में, कैलाट्रोपिस प्लांट है उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट एडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जीनोगैमी ऑल्सो, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के ही अदर नेम्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। एज वी नो, फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन द एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड, लाइक so many agencies are there, so many helping factors are there that are helpful in the cross pollination. So if the pollination is by the help of, first one is anemophily. Anemophily means होता है when the pollination is taken by the wind. Second one is hydrophily. It means hydrophily. It means when the pollination is with the help of water. Next one, that is zoophily. Zoophily means when it is with the help of zoo for the animals, by the help of animals, then it will be called as zoophily. Next one is entomophily. Entomophily जो है उसको mostly देखा जाता है, बहुत कॉमन, वेरी कॉमन मेथड, नॉर्मली इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट्स. And the other are ornithophily. Ornithophily means ornithophily, that ornithophily is with the help of birds basically. Malacophily, this malacophily is by the help of snails. And so many other different type of pollinations are also there. So this is all about the pollination, the different factors of pollination, types of pollination on the basis of pollinating agent. तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.